Good morning. So today we shall be starting. Already we had started this part, democratic resurgence. We had already started, but we had taken the additional topics to add हुए in syllabus में. But today we shall be studying the major and important content of this chapter, that is national emergency of 1975. What were the reasons for the imposing of national emergency 1975? So we shall be studying it. So this is a chapter of your book, the crisis of democratic order, and the content of this chapter we shall be studying in this democratic resurgence. This is the new name of the chapter, but this same content we have to study in this particular topic also. And this all the chapter whole content is about the national emergency of 1975. ठीक है? Okay. So under this what we are going to study? First of all, we will see national emergency, that is June. The date is June 1975. And we shall be first of all we shall be studying the factors or the reasons which were very important, because of which there was an imposition of this emergency of 1975. So economic context, Gujarat and Bihar movements, Naxalite movement, conflict with judiciary of Indian government or Indira Gandhi. So all these are some of the important. There were many factors, but these were the major factors we can say which led to the emergency of 1975. So we shall be studying this, and after completing the factors, again we shall also be studying the consequences, and we can say what we have learned, lessons from the national emergency, what we have learned. So all that we shall be studying under this particular chapter, and this is the major topic of this chapter, democratic resurgence, national emergency. We have to cover. If we have to cover the topic national emergency, it means we have to complete this chapter, the crisis of the democratic order. This is the chapter number 6 of your books. Okay. So we shall be covering it. But before I start studying what do you mean by national emergency, let's see a small introduction, and it is very nice if you study it, you will come to know. So that we can relate this topic with the past knowledge which we have already covered till the Lok Sabha election of 1971. तो 1971 के बाद क्या हुआ है, we'll see, और क्या क्या होता गया जिसकी वजह से national emergency हुई है. Okay. So in this chapter what we are going to study basically on this page. Okay. We have seen in the last chapter that the Congress recovered after the 1971. Why this word is written that Congress recovered? Because Congress has restored its power. 1971 में हुआ था, 67 में बहुत सारी सीट्स खोली थी, but in 71 में इंदिरा गांधी again came back very strong. जब क्या हुआ था, कांग्रेस में स्प्लिट उसके हो चुका था, ठीक है? We have seen in the last chapter that the Congress recovered after 1971, but was not the same kind of party. अब वो पार्टी सेम नहीं थी, उसकी आइडियोलॉजीज में कुछ चेंजेस आ गए थे, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए थे. The difference became clear in the series of events between 1973 and 75. तो 71 में गवर्नमेंट बन गई, बट 1973 से 75 में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से हम ये इमरजेंसी देखते हैं. तभी लिखा हुआ है, देखिए, the difference became clear in the series of events between 73 and 75 that brought new challenges to Indian democratic politics and institutional balance sought by the constitution. These developments led to the imposition of, तो ये जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे 73 से 75 के बीच में इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में, उसकी वजह से ये रीजन बताया जाता है. These developments led to the imposition of emergency in June 1975. ध्यान रखिएगा, ठीक है? Normally we would associate emergency with war and aggression or with natural disaster. Normally when we talk about the emergency बहुत बड़ा टर्म है जिसमें सारी हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है सारा कंट्रोल किसके पास चल जाता है, गवर्नमेंट एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करती है. तो नॉर्मली जो इमरजेंसी की बात करती है तो दोज इमरजेंसीज आर ड्यूरिंग वॉर, या तो हमारी वॉर चल रही हो किसी कंट्री के साथ बहुत, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे, या कोई नेचुरल डिजास्टर अंदर आ गया हो, ठीक है, इस टाइप से. बट ये जो इमरजेंसी थी, दिस वाज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस, जो रीजन दिया गया था इस इमरजेंसी के लिए वो क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस. जो इंदिरा गांधी ने रीजन दिया था कि हमारी कंट्री के इंटरनली जो अलग अलग सोशल ग्रुप से, सोसाइटी से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हर तरह बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था. तो शी गेव दिस रीजन कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हमें नेशनल इमरजेंसी करनी पड़ेगी, ठीक है? तभी लिखा है नॉर्मली वी वुड एसोसिएट इमरजेंसी विद वॉर एंड एग्रेशन और विद नेचुरल डिजास्टर, बट दिस इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द परसीव्ड थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो मैंने बताया. ओके. इमरजेंसी एंडेड एज ड्रामेटिकली एज इट बिगन, resulting in a defeat of Congress in the Lok Sabha election of 97.
जब इमरजेंसी जब ये शुरू हुई है तब क्या होता, कांग्रेस जीती थी 71 में, पर जब ये इमरजेंसी को बंद किया तब क्या हमने 77 में, इमरजेंसी एंडेड इन 1977, ठीक है, 18 मंथ्स की हुई थी इमरजेंसी हमारी कंट्री में, 19 किससे, जून 1975 से 77 तक। तो जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शंस हुए लोकसभा के, उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ी डिफीट हुई कांग्रेस की लोकसभा में, और पहली बार डिफीट हुई। इससे पहले जब हमने पढ़ा था 67 में कांग्रेस ने सीट्स और वो पावर और मेजोरिटी को खोया था, बट स्टिल दे मैनेज समहाउ टू शो द मेजोरिटी। गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की थी, पर जो मेजोरिटी में मिला करती थी उसमें बहुत डाउनफॉल हुआ था। पर 77 में फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस वाज डिफीटेड फॉर द लोकसभा इलेक्शन इन 1977, ठीक है, पहली बार इमरजेंसी जस्ट बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस आ गई थी 1977। So in this chapter we focus on this crucial phase in the history of democracy in India and ask questions that have remained controversial after all these years. तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं हम, this is a blot on Indian democracy, एक काला धब्बे की तरह मानते हैं, blot होके एक काला धब्बे को मानते हैं किसको, इमरजेंसी को। इंडियन डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं आज तक, तो उसको एक क्या काला धब्बा मानते हैं, दाग मानते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, जिस तरीके से इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था इंडिया में 1975। So बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, why was emergency imposed? So we will see the reasons and background कि ये क्यों impose हुई, we will see the factors इनकी वजह से ये impose हुई, but after that we will also see why was emergency imposed, was it necessary, क्या जरूरी था उस टाइम पे इस टाइप की इमरजेंसी को impose करना, why did the imposition of emergency mean in practice, रियल मीनिंग इमरजेंसी का क्या है अगर वो प्रैक्टिस में आ रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पावर्स गवर्नमेंट की थी, क्या करना चाहिए था, ठीक है। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी और पार्टी पॉलिटिक्स, जो इंडिया के में उसके बाद 77 से जो बोल रहा हूँ पार्टी पॉलिटिक्स चला, उसमें क्या चेंजेस आए, क्या इंपैक्ट पड़ा ऑफ द इमरजेंसी ऑफ 1975, और लास्ट में व्हाट आर द लेसंस, हम क्या लेसंस क्या सीखने को मिलता है हमें इमरजेंसी से, फ्यूचर में हमारी कंट्री में इस टाइप की सिचुएशन ना आए लाइक दिस इम्पोजिशन ऑफ दिस इमरजेंसी, उससे हमें क्या क्या सीखने को मिला, क्या चेंजेस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए, सोसाइटी में किए, पॉलिटिक्स में किए। सो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें 100% क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। नेशनल इमरजेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो वी विल स्टडी दिस नाउ। So now let's start the topic, and the chapter is the crisis of the democratic order. This from your NCERT book, but the new name is this. So first of all, we will see the background to emergency. This is the first topic of your book, background to the emergency. Can you understand background to the emergency? Emergency लगाई, impose की, what were the reasons? Directly लगा दी बोला। जब भी कोई एक्शन होता है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से ये चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए होंगे। नीड फील हुई होगी, इंदिरा गांधी को प्रेशराइज हुई होगी बहुत कि उसको लगा कि ये चीजें करनी चाहिए, वो गलत थी या सही थी, दैट विल सी फर्दर इन दिस चैप्टर। बट बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, लेट्स सी क्या एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट बन रहा था हमारी कंट्री के अंदर स्लोली, जिसकी वजह से इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ी। So we have already studied the changes that were taking place in Indian politics in 1967. तो हम ऑलरेडी इंडियन पॉलिटिक्स में देख चुके हैं, 1967 का इलेक्शन था, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। बट यहाँ पे इंदिरा गांधी हैड इमर्ज एज अ टावरिंग लीडर विद द ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी, ये भी पता है हमें, बहुत एक पॉपुलैरिटी और इम्पोर्टेंट लीडर की तरह इलेक्शन में जीत के सामने आई थी कौन, इंदिरा गांधी। जब उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, इन द इलेक्शन ऑफ 1971, उन्होंने इतनी मेजोरिटी लाई थी, इतना सपोर्ट मिला था लोगों से जो कभी भी लोकसभा इलेक्शन में 1952 के बाद से नहीं मिला। ओके, दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन पार्टी कंपटीशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज्ड। नाउ दे आर सेइंग यही पीरियड 1970 60s का जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी हुई है, इसी टाइप में हमने देखा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स था वो क्या हो गया था, बहुत बिटर हो गया था, कड़वाहट आ गई थी, ग्रुप्स हो गए थे, पोलराइज्ड, पोल्स बन गए थे। जैसे हमने किसमें स्प्लिट देखा, कांग्रेस में देखा, कांग्रेस वो बन गई थी, कांग्रेस आग बन गई थी। सो देयर वर डिफरेंट पोल्स, जिसमें बहुत डिफरेंसेस आ गए थे लोगों के बीच इस पॉलिटिक्स में। This period also witnessed tension in the relationship between the government and judiciary, and this is the only period 60s 70s का इमरजेंसी से पहले का जो टाइम पढ़ रहे हैं 67 के इलेक्शन के बाद, इसके बीच में ही गवर्नमेंट और जुडिशरी कौन होते हैं, कोर्ट, ठीक है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इसके बीच में, और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो उसको क्या बोलेंगे हम, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। क्यों आई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस को वॉयलेट कर रही थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलाउ नहीं है, बट शी वाज एक्टिंग एज अ डिक्टेटर बहुत जगह पर, तो बहुत सारे रूल्स को ब्रेक कर रही थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा
जुडिशरी, उसका गार्जियन होता है। कोर्ट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट है, किसको प्रोटेक्ट करता है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट है उसको रोकने के लिए। तो इसकी वजह से जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और जो हमारा जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थे, उनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी, वही पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स पॉलिसीज ऐसी ला रहा था टू बी वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। ठीक है, द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दिस स्टैंड ऑफ कोर्ट वाज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। उल्टा गवर्नमेंट बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं कर रहा है फ्रीली वर्क करना किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उस पे चार्ज लगा रहा था, उस पे चार्ज लगा रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ठीक है, the Congress also agreed that the court was a constructive institution, that it was becoming an obstacle। उन्होंने ये भी बोला जो कोर्ट है वो एक ऑब्स्टिकल होता जा रहा है, रुकावट आ रहा है किसके रास्ते में? गवर्नमेंट जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज प्रोग्राम्स स्टार्ट करना चाहती है, इट्स लाइक अ ऑब्स्टिकल और ठीक है ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट। स्पेशली किसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही थी गवर्नमेंट? दे वर सेइंग प्रो पुअर, मतलब गरीब लोगों के लिए जो पॉलिसीज लाना चाहती है उसके रास्ते में कौन आ रहा था? कोर्ट आ रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है। Pro-poor welfare programs. The parties opposed to Congress felt that politics was becoming too personalized। पर जो अपोजिशन में थे इंदिरा गांधी के, वो पार्टीज और वो लोग उसके ऑलरेडी क्रिटिक्स तो थे, they used to criticize her, they wanted her कि वो पावर में ना रहे, तो they started saying that now this politics was becoming personalized। Personalized means she was using the government machinery power just for her personal motives, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटी वर बीइंग कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी, और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है उसने उसको क्या बना लिया था? पर्सनल अथॉरिटी। तो मतलब एक ऐसे सिंपली इन टर्म्स से मैं कहना चाह रहे हैं, इंदिरा गांधी नाउ वाज मिसयूजिंग द पावर्स व्हिच वर गिवन टू हर एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो एक जो लिमिटेशंस थी वो उसकी भी बियॉन्ड जाकर के वर्क कर रही थी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एंड व्हिच वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब अपोजिशन लीडर्स बोल रहे थे। द स्प्लिट इन द कांग्रेस हैड sharpened the division between Indira Gandhi and her opponents, and हमें already पता है there was a division and there were differences in the ideologies। already बहुत सारी problems थी इंदिरा गांधी जी किसके साथ? कांग्रेस ओ के लीडर्स के साथ, जो पहले ओल्ड कांग्रेस के लीडर्स थे, already they were having lot of differences amongst themselves। so these were some of the reasons or we can say background जो 1967 के इलेक्शन के बाद were building continuously। कोई भी चीज एकदम से सडनली नहीं हुई इमरजेंसी। so these are the reasons, these are the changes which was coming again and again in the field of economics, political, cultural। देखेंगे तो हर कोई इसमें मिक्स है, जिसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। नाउ आफ्टर द बैकग्राउंड वी आर सीइंग 67 इलेक्शन का क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में क्या प्रॉब्लम्स होती, अपोजिशन लीडर्स क्यों अगेंस्ट थे इंदिरा गांधी के। आफ्टर सीइंग ऑल द बैकग्राउंड, अभी हुई नहीं इमरजेंसी, दिस इज द रीजन। इसकी वजह से हमारे किसी के साथ लड़ाई होती है, आपके साथ किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो एकदम से नहीं होती है। बहुत सारे आप बोलेंगे तब तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, एंड दैट टाइम यू डिड नॉट सपोर्ट मी, तब तो वहाँ, तो ये चीजें क्या बिल्डअप रहती है हमारे माइंड में, और जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फिर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं। सेम वे इमरजेंसी सडन नहीं हो गई, तो देयर वाज अ बैकग्राउंड, एक एनवायरनमेंट बनता जा रहा था 67 के इलेक्शन के बाद कंटिन्यूअसली। सो नाउ वी विल सी द फैक्टर्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको मानते हैं, इनको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जाता है जिसकी वजह से इमरजेंसी को इंपोज करना पड़ा। ऑलरेडी ये बैकग्राउंड तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ वी विल सी द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। हमारे कंट्री में इकोनॉमिक की फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मूवमेंट्स होते हैं गुजरात एंड बिहार में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से कैसे इमरजेंसी इंपोज हुई। देन विल सी नेक्स्ट लाइन मूवमेंट क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा नेशनल इमरजेंसी में। देन विल सी कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, जो भी बताया जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट किसका था? गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से भी नेशनल इमरजेंसी इंपोज की थी इंदिरा गांधी ने। तो विल सी ऑल दिस फैक्टर्स, और वी कैन आल्सो से द कॉजेस, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट 4 कॉजेस of the imposition of national emergency in 1975। so you will have to add these 4 points, और भी बहुत points हैं, you can add them also, but उनके बारे में you will have to write also। ये नहीं कि 6 marks का क्वेश्चन है तो you write these 4 points, you will have to explain them। सबके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा you will have to learn। समझ में आता है, ऐसे ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है, you must know कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो these are the factor and causes। अगर consequences आ गए तो क्या, जो इमरजेंसी लग गई उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में, वो consequences में आएगा। लेसन्स आ गए, वो आंसर अलग होगा कि लेसन्स क्या क्या सीखने को मिला कि हम फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स लाए, बट ये क्या है फैक्टर, इनकी वजह से इमरजेंसी हुई। सो सबसे पहला क्या है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहला वी आर स्टार्टिंग डिटेल में इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट वन बाय वन। आज हो सकता सारा ना हो पाए, बताओ मुझे। आज हम पहला कॉज एंड फैक्टर पढ़ रहे हैं ऑफ
imposition of national emergency of 1975. बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम रीडिंग इट. In the elections of 1971, Congress had given the slogan of गरीबी हटाओ. You know that very well. 1971 में जीतने का एक यही रीजन था कि जो एक बेस था हमारी सोसाइटी में, लेबर क्लास, पीजेंट्स, फार्मर्स, इनको टारगेट किया था, अनएम्प्लॉयड, यूथ. तो इंदिरा गांधी हैड वोट बैंक जो आया, सपोर्ट आया इंदिरा गांधी को इसी से आया था, बिकॉज शी हैड गिवन दैट स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी. However, the social and economic conditions in the country did not improve much after 71, 72. पर गवर्नमेंट बना ली 71 में, 72, 73 तक भी इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस लोगों की वैसे ही थी. शी हैड टू प्रॉमिस देम ना, प्रॉमिस किया था दैट आई विल इम्प्रूव, हम गरीबी को हटाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाएंगे, उनको सपोर्ट करेगी. बट इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, कंडीशन लोगों की वैसी. तो ठीक है, तो लोग खुश होंगे या नाराज? They were dissatisfied, discontent with Indira Gandhi. ठीक है. तब बांग्लादेश, एक रीजन ये हो गया. दूसरा क्या है, तब लिख भी सकते हो आप, जैसे एक रीजन ये हो गया. इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो शॉर्ट में कैन राइट, जब मैंने इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट तो यू कैन राइट, जो गरीबी हटाओ वो दिया था, वो डिसकंटेंट के लोग, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए थे इकोनॉमिक सोशल लाइफ में लोगों की. दूसरा क्या है, बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट अ हेवी स्ट्रेन ऑन इंडियन इकोनॉमी. कब हुआ था बांग्लादेश क्राइसिस? हमने बताया ना, जैसे ही इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती थी 1971, पहला जो उसके ऊपर प्रेशर आया था, क्या आया था, बांग्लादेश. उसके बाद क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का, जिसकी वजह से बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो 71 में हुआ था. तो उसमें क्या होता, बहुत सारे रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश दे फ्लीड ओवर टू इंडिया. इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा थी, पॉवर्टी थी इंडिया में ऑलरेडी, ऊपर से बांग्लादेश के लोग भी आ गए, तो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया इंडिया के रिसोर्सेज पे. ठीक है, अब क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स. खाने को कम है, लोग बहुत ज्यादा है. ऑलरेडी इंडिया वाज अ पॉवर्टी एंड अंडरडेवलप्ड कंट्री एट दैट टाइम. तभी लिखा हुआ है अबाउट 8 मिलियन पीपल क्रॉस ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया. तो ईस्ट पाकिस्तान हम किसको बोलते थे उस टाइम, बांग्लादेश. तो वहां से दे मेनी पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया. तो कितने पता होना चाहिए, 1 मार्क में भी आ सकते हैं, अराउंड 8 मिलियन. ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चंस जहां पे 1 मार्क्स का ध्यान रखा करो, जरूरी नहीं लॉन्ग आंसर में आए. This was followed by war with Pakistan. उसके तुरंत बाद क्या हो गया, पाकिस्तान से वॉर हो गया मार्च 71 में. After the war, US government stopped all aid to India. पाकिस्तान सपोर्ट करता था कोल्ड वॉर में किसको, यूएस का अलाय था. तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ बिकॉज ऑफ बांग्लादेश 1971 में, तो इंडिया में जितनी भी फूड ग्रेन्स और जितनी भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हम इंपोर्ट करते थे अच्छे लो प्राइसेस में, किससे, यूएस से. यूएस ने हमको एड करना, हमको हेल्प करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान वाज द अलाय ऑफ यूएस. यूएस किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ था. तो हमें वहां से हेल्प मिलनी बंद हो गई. ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही थी 67 से बाद, ड्रॉट, मॉनसून फेलियर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर बहुत वीक था. इन सब के बीच में हम इंपोर्ट्स की वजह से काम चल रहा था, पर वो भी यूएस ने अब बंद कर दिया. तो प्रॉब्लम्स और क्या हो गई. तो इन रीजंस जो हम पढ़ रहे हैं, तो बता रहे इंडिया में हमारी कैसी कंडीशन और खराब होती जाती थी 71 के इलेक्शन के बाद. तब 75 में फाइनली एन इमरजेंसी रखी. फिर क्या है, इन द इंटरनेशनल मार्केट. अब अगली चीज क्या होती है, 2-3 पॉइंट बता दिए. थर्ड है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज मैनीफोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इसी पीरियड में 71 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइस थे, ठीक है, वो क्या होगा है, बहुत इंक्रीज होगा. और जब ऑयल के रेट इंक्रीज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी इकोनॉमी में पड़ता है. क्यों, कैन यू इमेजिन एनी सेक्टर जो बिना ऑयल के वर्क कर रहा हो, मशीन्स चलेंगी तो किससे चलेंगी, डीजल, पेट्रोल या किसी भी केरोसिन जो भी यूज होता था. ऑयल की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, आप लोगों ने 9th-10th में साइंस से पढ़ा होगा. तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे प्रोडक्शन में. अब ऑयल महंगा आ रहा है तो मशीन्स में महंगा ऑयल बढ़ेगा, तो जो उससे प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या, सस्ता बिकेगा, महंगा बिकेगा. उसकी वजह से और ज्यादा ऑलरेडी पॉवर्टी थी और प्राइसेस इंक्रीज हो गए हमारी सोसाइटी में. चीजों के प्राइस इंक्रीज हो गए, उसकी वजह से 23% सब चीजों पे 23% प्राइस इंक्रीज हो गए 1973 तक. और ये और ज्यादा इंक्रीज हो गए अगले साल, 30% इंक्रीज हो गए 1974. इमरजेंसी से एक साल तक पहले पहुंच गए हम. 74 तक मतलब हर जो बेसिक सी नीड थी सब लोगों की, उन 30% तक प्राइसेस इंक्रीज हो गए. ठीक है, और किसकी वजह से इंक्रीज हुए आयुषी, ड्यू टू नहीं, ये प्राइस राइज क्यों हो रहा था, ऑयल प्राइस बताया बेटा मैंने. इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का जो प्राइस था वो बहुत इंक्रीज हो गया था. उसकी वजह से सारी कमोडिटीज जो प्रोडक्शन में काम आता है, पेट्रोल, डीजल जो भी, ठीक है, उसकी वजह से सब चीजों के प्राइस बढ़ गए थे. 1974 में कितने परसेंट बढ़ गए थे, अराउंड 30%. ठीक है,
तो इसकी वजह से सच अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज मच हार्डशिप टू द पीपल। ऑलरेडी पीपल वर टू पुअर, अंडर पॉवर्टी थे, ठीक है, और फूड ग्रेन्स की बहुत शॉर्टेज थी, ठीक है, स्टार्व कर रहे थे फूड के लिए, और जब प्राइसेस हाई हुए तो और ज्यादा परेशानी होने लगी लोग। उसके बाद अगला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और जब पेट्रोल ये सब प्राइस बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा, मॉनसून फेल हो जाएगा, तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई। तो 73 74 की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी से जस्ट पहले। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई थी, पॉवर्टी बहुत हो गई थी, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, गांव में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोजन द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट ने सोचा थोड़ा इन लोगों की हेल्प की जाए, तो उन्होंने क्या किया, पैसा तो आ नहीं रहा था कहीं से, प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर हो नहीं रहा था, हमारी कंट्री मेजरली जो इनकम आता था कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर, पर एग्रीकल्चर तो फेल हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उनके एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी को क्या किया, रोक दिया, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, ताकि जो थोड़ा सा फंड कलेक्ट हो उससे लोगों को एटलीस्ट सपोर्ट कर पाए थोड़े टाइम के लिए। बट जैसे ही सैलरी लोगेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो पीपल विल बी सेटिस्फाइड और दे विल बी डिसकंटेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो किसके अगेंस्ट हो जाएगी, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगी जब उनको सैलरी नहीं मिली। तो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन दिस कॉज फर्दर डिससैटिस्फैक्शन अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। इसी के साथ साथ मॉनसून फेल इन 1972 72 73 में मॉनसून भी फेल हो गया था, बता दिया था। दिस रिजल्टेड इन द शार्प डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वेंट वेरी लो। फूड ग्रेन्स आउटपुट डिक्लाइन, ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%, 8% कम हो गए। जो रेगुलरली फूड प्रोडक्शन होता था, लो रेनफॉल की और मॉनसून की वजह से 8% गिराव आ गया उसमें। दिस वाज अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस वी गेव। सो दीस वर्ड आइए देखेंगे, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो सारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये कुछ कंडीशंस बन रही थी 71 72 73 और 74 ईयर तक बिफोर द इमरजेंसी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। So in such a context, non-Congress opposition parties were able to organize popular protests. So जब भी ऐसा प्रेशर आता है गवर्नमेंट में, so the first people who put pressure on the government are the opposition parties. तो यहाँ पे all the opposition parties who are against Indira Gandhi, including Congress O और सारी parties जो कोलिशन बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे, ग्रैंड अलायंस जिन्होंने बनाया था 71 में, और उनको मौका मिला, उन्होंने और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, पॉपुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, और बेसिकली वी कैन से अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, पर इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आई, 70s में एक जो यहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुए, प्रोटेस्ट शुरू हुए, डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुए सोसाइटी में अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो कौन, इसमें कौन इन्वॉल्व हो गए इस बार, स्टूडेंट्स, पहली बात, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखो, instance of students unrest that had persisted from the late 1960s became more pronounced in this period. पहले से करते थे पर तब पता नहीं चलता था, पर जब ये चीजें हो रही थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में आगे आए। There was also an increase in the activities of Marxist group who did not believe in parliamentary politics. Marxists वो लोग होते हैं जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं, और वो जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में, वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिली टू कम अगेंस्ट द गवर्नमेंट। These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of capitalist order. वो लोग इस कैपिटलिस्ट सिस्टम जो हमारे कंट्री में चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा था, प्राइवेट ओनरशिप जो थी, इसको खत्म करना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने क्या उठाए, हथियार, आर्म्स वगैरह भी यूज करने शुरू कर दिए, किन्होंने, मार्क्सिस्ट ग्रुप ने, ठीक है, बिकॉज ये लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, और यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थी, ठीक है। ओके, नोन एज द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, नाउ माओइस्ट, माओइस्ट भी सुना होगा, माओवादी हिंदी में आता है न्यूज में, ये वही लोग होते हैं जो अगेंस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम होते हैं। और नेक्सलाइट सुना होगा, नेक्सलाइट हो गए, माओइस्ट हो गए, या ये हो गए मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो गए, इन सब की क्या आइडियोलॉजी सेम है, मतलब ये लोग किसके अगेंस्ट है, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें मौका मिल गया इंडिया, हमारी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का। सो इस टाइम पे क्या देखा हमने, दे आर पर्टिकुलरली स्ट्रांग इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेक्सलाइट मूवमेंट शुरू हो गए थे। वी आर द स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्ट मेजर्स टू सप्रेस देम, ऑल्दो हमारी स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल ने बहुत कोशिश की सप्रेस करे इस नेक्सलाइट मूवमेंट को। नेक्सलाइट जब भी वर्ड आता है मींस दे आर अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सिस्टम जो इंडिया में उस टाइम पे चला रही थी हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। इसको सप्रेस करने की बहुत कोशिश की है वेस्ट बंगाल में। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक context. So these were the situations and circumstances which were prevailing in our society before the emergency of 1975.
तो 72, 73, 74 हमने देखा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चल रहा था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था किसके ऊपर, ऑन गवर्नमेंट और इंदिरा गांधी. नाउ नेक्स्ट वी शैल सी गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स. So now next factor which led to the emergency of 1975 is Gujarat and Bihar movements. Although there were movements and protests all over our country against the rule of Indira Gandhi during 93-94, but majorly it started from this Gujarat and Bihar. ये दोनों बहुत important movements माने जाते हैं for this imposition of emergency. So let's see गुजरात और बिहार में किस type के movements हो रहे थे. Okay. So the topic in your book also is Gujarat and Bihar movements. I hope you are understanding these are the factors which led to the emergency. So first we have covered economic context. अब दूसरा रीजन क्या था, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट. सो इसमें मैं एज आई टोल्ड 1970s का जो ये चल रहा था इमरजेंसी से पहले का पीरियड, जहाँ पे स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व. तो इन दोनों ही प्रोटेस्ट की जब हम बात करेंगे गुजरात और बिहार में, स्टूडेंट्स हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट. लेटर ऑन देयर प्रोटेस्ट और देयर डेमोन्स्ट्रेशंस वर एडेड और ज्वाइन बाय द पॉलिटिशियंस. बाद में अपोजिशन पार्टीज ने ज्वाइन किया, पर पहले स्टार्ट किसने किया था, स्टूडेंट्स ने. ठीक है, तो रीड करते हैं. स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड बिहार बोथ ऑफ विच वर कांग्रेस रूल्ड स्टेट. उस टाइम पे 71 के इलेक्शन के बाद जब ये प्रोटेस्ट हुए गुजरात और बिहार में, दोनों जगह किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. स्टेट की बात कर रहा हूँ, सेंटर में लोकसभा में तो थी, बट स्टेट असेंबलीज की बात होती है. तो गुजरात वाज आल्सो रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस एंड बिहार आल्सो had far-reaching impact on the politics of the two states and national politics. In January 1974, तो ये कब की बात हो रही है, देखिए जनवरी भी है 1974. अब इसके साथ साथ आपको मंथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर देखेंगे इमरजेंसी किस मंथ में इम्पोज होती है और कब एंड होती है. तो जनवरी 1974 में स्टूडेंट्स इन गुजरात स्टार्टेड एन एजिटेशन अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स. जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया वर अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के रीजंस क्या थे, राइज हो रहे थे प्राइस बहुत फूड ग्रेन्स के, एज आई टोल्ड इस टाइम पे कुकिंग ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया था, ऑयल का मैंने जैसे तुमको बताया था. एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज, जो भी एक फैमिली के लिए कमोडिटीज होती है, स्पेशली हम जो हर दिन यूज करते हैं, उन सब के ही प्राइस अराउंड आई टोल्ड यू 74 में कितने परसेंट बढ़ चुके थे, अराउंड 30% बढ़े थे. ठीक है. सो हाँ, एंड अगेंस्ट करप्शन. तो रीजंस क्या थे, प्राइस बढ़ रहे थे फूड ग्रेन्स के, कुकिंग ऑयल के और सारी एसेंशियल कमोडिटीज के. उसके साथ साथ ये सारे स्टूडेंट्स साथ आए थे किसके अगेंस्ट, करप्शन बहुत हो रहा था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है. इन हाई प्लेसेस द स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाज जॉइंड बाय मेजर अपोजिशन पार्टीज एंड बिकेम वाइड स्प्रेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर मूवमेंट्स है, इसी के लिए हम इनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मूवमेंट को किन्होंने ऐड किया, अपोजिशन के इंपॉर्टेंट लीडर्स ने इनको ऐड किया, तो बहुत और स्ट्रॉन्ग हो गया ये प्रोटेस्ट. और जब यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, अनरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या इंपोज करना पड़ा, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट. प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, उसमें डायरेक्ट रूल किसका चलने लगता है, प्रेसिडेंट का. जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फंक्शन इन द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत प्रेशर है, तो वो किसके अंडर आ जाती है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गुजरात की जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं, किसके अंडर आ गई थी, डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल के अंडर. द अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर. और जो अपोजिशन पार्टीज थी, मान लीजिए यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट थी, आई टोल्ड यू कांग्रेस की. कांग्रेस को यहाँ पे डिसॉल्व करके किसका रूल आ गया, प्रेसिडेंट का रूल आ गया. अभी जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती है तो कौन रूल करता है, प्रेसिडेंट. पर यहाँ पर फिर ये जो अपोजिशन पार्टी रही होंगी ना, तो अपोजिशन पार्टीज ने क्या बोला, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली कि वहां पर वो लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं. तो दे स्टार्टेड एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू हैव फ्रेश इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव. स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब बट स्टेट लेवल पे होने थे. अब इसमें अपोजिशन में देखिए कौन आ रहा है इंपॉर्टेंट, मोरारजी देसाई. नाम तो सुना है, हमेशा से जो किसके अगेंस्ट थे, इंदिरा गांधी के. यस, कांग्रेस तो था ना इसमें, किसमें, इसी में, गुजरात में. हाँ, कांग्रेस की थी, उसको डिसॉल्व कर दिया क्योंकि लोगों का बहुत प्रेशर था, तो हटा दी. ठीक है. जब डिसॉल्व होती है तो किसका रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट. अभी कोई यहाँ पे गवर्नमेंट जो गुजरात की जो स्टेट थी, इसमें किसका रूल था, प्रेसिडेंट रूल था, जब तक कोई गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं होती है. उन्होंने यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी गुजरात में, उन्होंने क्या बोला, कांग्रेस को तो हटा दिया, अब यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए. और फ्रेश इलेक्शन उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे चांसेस थे कि हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि सारे लोग किसके अगेंस्ट है, कांग्रेस के अगेंस्ट है. तो यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन हुआ, तो उनका अपोजिशन लीडर कौन आएगा आगे सामने, मोरारजी देसाई. उसने क्या बोला, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा. हमें पता है हमेशा से वो किसके अगेंस्ट था, इंदिरा गांधी का. वो
कांग्रेस का पुराना लीडर था, when he was in Congress, announced that he would go on an infinite fast if fresh elections were not held in the state. उसे प्रेशर डाला गवर्नमेंट ने कि मैं फास्ट करूंगा, भूख हड़ताल जिसको कहते हैं, जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होते हमारे गुजरात में, ठीक है। तो फाइनली इतना प्रेशर आ गया हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, कौन सी गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के, कि यहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस करवाने पड़े। और सबको पता था अगर फ्रेश इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट आएगी, नॉन कांग्रेस, कांग्रेस दोबारा से नहीं जीत पाएगी। तो अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स सपोर्टेड बाय द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड, दोबारा से असेंबली इलेक्शन है गुजरात में इन जून 1975। तो रिमेंबर द डेट, जून 1975। द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। तो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस स्टेट, ये लोकसभा के इलेक्शन नहीं है, स्टेट किया गुजरात में। जब गुजरात में जबरदस्ती इलेक्शन फोर्स किया, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, तो वहां पर इलेक्शन हुए जून 1975। ये जस्ट किसकी पहले की डेट आ रही है, यहाँ पे भी क्या बता रहा हूं मैं, नेशनल इमरजेंसी जून 1975 में। उससे पहले यहाँ पे क्या बन गई, गवर्नमेंट बन गई नॉन कांग्रेस, पर अभी डेट नहीं है ना कौन सी जून को, तो अभी डेट इमरजेंसी की विल सी। द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस हार गई और नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। वो कौन सी बनी, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है। अब बिहार मूवमेंट पे देखिए कब हुआ, इन मार्च 1974, ठीक है। ये कब हुआ था, गुजरात वाला जनवरी में 74 में, और ये कब हो रहा है, मार्च में बिहार वाला 74। यहाँ पे भी सेम इशू था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था बिहार में, रीजंस वही थे, प्राइस हाई हो रहे हैं, फूड स्कैर्सिटी, फूड ग्रेन की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, करप्शन। तो जो रीजंस थे, फैक्टर्स थे, वो सेम थे फॉर द प्रोटेस्ट व्हिच वर सेम एज गुजरात एंड बिहार। आफ्टर अ पॉइंट दे इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि यहाँ पर क्या हुआ, बिहार में जो स्टूडेंट्स थे दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेम कॉजेस जो यहाँ पे थे, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनको इनवाइट किया, किसको, जयप्रकाश नारायण। पढ़ाया में जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट थे, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ रखा था, वो सोशल वर्क करते थे, ठीक है। जो भूदान हमने पढ़ा था, दे वर इनटू भूदान। सो नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स ने उनको इनवाइट किया कि टू लीड दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि उनकी लीडरशिप के अंडर दिस मूवमेंट वुड हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि ठीक है मैं लीडर बनूंगा आपके मूवमेंट का, बट देयर आर फ्यू कंडीशंस। तो देखिए व्हाट वर दोस कंडीशंस। आफ्टर अ पॉइंट दे इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण, जिसको हम पॉपुलरली एज जेपी बोलते थे, who had given up active politics, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स बहुत पहले छोड़ रखी थी, and was involved in social work to lead the students movement. He is accepted it on the condition, अगर स्टूडेंट के मूवमेंट को लीड करने को रेडी तो है, बट कुछ कंडीशंस थी, that the movement will remain non-violent, कि ये जो मूवमेंट होगा क्या होगा, नॉन वायलेंट। व्हाई नॉन वायलेंट क्यों बोला, बिकॉज ही वाज द फॉलोअर ऑफ गांधी। जब इंडिया वापस आए थे, सो टोल्ड यू, यूएसए मार्क्स कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस थी वो उनकी आइडियोलॉजी से, पर इंडिया में जब उन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया, ही फॉलोड महात्मा गांधी। सो ही सेड ये जो मूवमेंट होगा बिहार में, स्टूडेंट मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्राइस राइज, करप्शन, जो भी चीजें हैं, पर ये मूवमेंट कैसा होगा, नॉन वायलेंट, पीसफुली हम इसको करेंगे, एंड विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू बिहार। और ये मूवमेंट बस बिहार तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, will spread this movement all over India, because these problems of price rise, corruption, etc., these problems are not only for Bihar. In fact, all the states in India are facing the same issues. So ये limited नहीं रहेगा बिहार तक, हम इसको फैलाएंगे। तो these were some of the two important conditions put forward for the students before joining this movement by JP. Okay. He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. The thing I have explained it. Thus, the students' movement assumed the political character and had national appeal. यहाँ से पता चल गया जो ये movement था बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल कैरेक्टर एक्सेप्ट करने वाला था, और एक नेशनल अपील थी, पूरे देश के लिए एक अपील बनने वाला था कि बिहार मूवमेंट। स्टूडेंट्स को इतना समझ आ गया था। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ नाउ एंटर्ड द मूवमेंट। अब इसमें हर तरीके के लोग आकर के ज्वाइन करने लगे, क्योंकि लीडर कौन बन गया था, जयप्रकाश नारायण, एंड ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग्स द पीपल। डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार। तो जयप्रकाश की जो ये मूवमेंट था, इन्होंने भी क्या शर्त रखी आगे कि यहाँ पे भी जो डिसमिस किया जाए, डिसॉल्व किया जाए किसकी गवर्नमेंट को, कांग्रेस की। जैसे गुजरात में प्रेशर डाला था, वैसे ही बिहार में भी अब जयप्रकाश प्रेशर डाल रहा था कि जो यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है बहुत करप्ट है, प्राइस राइज हो रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसको प्रेशराइज किया जा रहा था कि डिसॉल्व किया जाए। सेंटर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट बिहार चला रही है उसको डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये जयप्रकाश का पहला एक पॉइंट था। जयप्रकाश डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड गेव अ कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। उन्होंने, हमने पढ़ा था उनके, जब आई वाज स्टडीइंग अबाउट
दिस जयप्रकाश नारायण जो हमने पढ़ा था, एडिशनल टॉपिक हमने पढ़ा था, उनका क्या था? थ्योरी, आइडियोलॉजी, टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन मतलब चेंजेस लाने, जल्दी चेंजेस लाने, बट टोटल एक फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में भी, पॉलिटिकल भी, सोशल भी और कल्चरल भी, हर फील्ड में हमें चेंजेस लाने हैं अगर हमें डेवलप करना है अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को। तो ही सेड call for the total revolution in the social, economic, political spheres to establish what he considered true democracy. अगर हमें ट्रू डेमोक्रेसी, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, रिक्रिएट, हमें फिर से रिक्रिएट करनी है, रिफॉर्म करनी है डेमोक्रेसी, क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बहुत ऑथोरिटेटिव वे में वर्क कर रही थी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? ट्रू डेमोक्रेसी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल। उसके बाद क्या हुआ? सीरीज ऑफ बंद, घिराव जो होता है स्ट्राइक में, शॉप मार्केट्स बंद रहते हैं, लोग स्ट्राइक में रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वही हुआ बंद, घिराव, स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये सब होने लगा जेपी के अंदर। द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन, पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने से। तो ये वाला इन दोनों का ये तक है कि इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो हम आगे देखेंगे। एक मिनट, इसको कर ही लेता हूँ मैं, इसको कर लेते हैं कंप्लीट। यार नेक्स्ट लाइन मूवमेंट विल डू सेपरेटली, क्योंकि ये एडिशनल है, इसी के आगे से कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम हियर, किसी बीच में छोड़ दूंगा फिर समझ नहीं आएगा, यहाँ तक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे द मूवमेंट वाज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स। अब गवर्नमेंट यहाँ पे रिजाइन नहीं कर रही थी, ठीक है, डिसॉल्व नहीं हो रही थी गवर्नमेंट, पर जयप्रकाश और ये प्रोटेस्ट करते गए और ये पूरे इंडिया में फैलता जा रहा था, इंपॉर्टेंट होता जा रहा था बिहार मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। तभी लिखा है जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब वो चाहते थे कंट्री में और भी एरियाज में इस मूवमेंट को लाइव किया जाए। Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of railway gave a call for nationwide strike. तो ये भी एक है वैसे इम्पोर्टेंट ना, when you will write the factor ये separately नहीं दिया हुआ, but railway strike भी करके लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है रेलवे स्ट्राइक। इसी टाइम पे क्या हुआ? जो रेलवे के एम्प्लॉयज थे उन्होंने स्ट्राइक की थी इसी टाइम पे जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। वही लिखा है देखिए, the threatened to paralyze the country in 1975 JP led the people march to the parliament। अब 1975 में क्या हुआ? जेपी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जिसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और वो प्रोटेस्ट कहाँ ले गए? वो लोग मार्च किया पूरा कहाँ तक? पार्लियामेंट तक। पूरी टीम चलती है भीड़, तो कहाँ तक गए ये लोग? पार्लियामेंट तक। तो बहुत प्रेशर था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज। तो ये सबसे बड़ी रैली थी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, एवर हेड इन द कैपिटल। तो दिल्ली में कैपिटल में पहली बार इतनी बड़ी रैली कोई आई थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उसको लीड कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण। ही वाज नाउ सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज लाइक। तो यहाँ पर सारी जितनी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी जो अपोज करती थी कांग्रेस को, सब एक साथ आ गई, जैसे कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस को, भारतीय लोक दल, द सोशलिस्ट पार्टीज एंड अदर। These parties were projecting JP। तो ये लोग कहते हैं जेपी को प्रोजेक्ट कर रहे थे एज अ ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब इंदिरा गांधी की जगह प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? जयप्रकाश नारायण। ये सब प्रोजेक्ट कर रहे थे उसको। However, there were many criticism about his ideas about the politics of mass agitation that he was employing। तो बहुत सारे critics भी होते थे, जेपी के भी critics थे जो बता रहे थे कि इस तरह का प्रोटेस्ट वो क्यों कर रहा है। There are some motives इस टाइप से। Both the Gujarat and Bihar agitations were seen as anti-Congress। अगर देखा जाए तो जो बिहार में कांग्रेस और गुजरात और बिहार में मूवमेंट, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम? एंटी कांग्रेस, एंटी कंट्री को, प्रोटेक्ट डेवलपमेंट को ना देख करके दे ऑलवेज सेड दैट दीस मूवमेंट्स वर अगेंस्ट कांग्रेस, एंटी कांग्रेस, एंड रेदर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट दे वर सीन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप। और इनको देखा जाए ये मूवमेंट्स अगेंस्ट द लीडरशिप। बेसिकली इनका रीजन ही क्या था, पर्पस ही क्या था? टू रिमूव इंदिरा गांधी फ्रॉम पावर, ठीक है। She believed that these movements were motivated by personal opposition to her। उसने बोला ये पर्सनल अपोजिशन जो है, लोग उनसे जेलस है जो कि या पावर की वजह से, इस वजह से ही ये मूवमेंट्स हो रहे हैं एंटी कांग्रेस, ठीक है। तो जो ये रेलवे स्ट्राइक है इसको हम अलग से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन होगा इसके। टुडे विल एंड अप हियर ओनली। इसकी रीडिंग करो आप, यू विल अंडरस्टैंड दैट।